Hello friends, welcome back to Varnita Easy Health, and this is Varnita. Today in this video we are going to discuss about the one more new topic from the commerce of class 12, that is the methods of measurement of price elasticity of demand from the chapter elasticity of demand. So in this video we are going to discussing about the methods of measurement of price elasticity of demand. So there are two methods of measurement of price elasticity of demand. Number one is your point elasticity and the second one is arc elasticity. पहला है point elasticity बच्चों और दूसरा है arc elasticity. Let us understand both the methods one by one. So the point elasticity method of measurement is used for particular point, means when there is a very small change in quantity demanded, then your point elasticity method is used. Okay, it is used for a particular point and it is suitable for very small change, means this method is used for to measure a very small change. And arc elasticity, it is used for a finite range, means for a definite range, means जब एक particular range में एक particular way में जब changes हुए होते हैं quantity demanded में, तब हम use करते हैं arc elasticity methods को. Suppose that कि मान लीजिए ये आपके दो points हैं, जब इन दो points के बीच में changes होंगे और बोला जाएगा कि आप डिस्टेंस को मेज़र करके दिखाइए बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देन योर आर्क इलास्टिसिटी मेथड विल बी यूज्ड. ठीक है, जब क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे कि मेज़र द इलास्टिसिटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दैट P, point P, then you will use point elasticity method. This method is used very rarely. This method is used very rarely. Let us see it with the help of a curve. Okay, suppose that it is your curve. Here x axis, y axis, this is O, origin. Okay, and here on the curve, this is your curve D, and it is your point. It is your point, and we have to measure the elasticity of price at this point. Then we will use the point elasticity method to measure the price elasticity of demand. Okay, but when in a question it has been asked that measure the distance between these 2 points, between these 2 points. Your first point is this x, y. Okay, I am drawing this diagram again here. D, and the same point, suppose that this point is R and this point is your R1. Then in a question it is asked that measure the difference between, measure the price elasticity of demand between R and R1 from the point R to R1. Then you will use the arc elasticity method. Which method? Arc elasticity method. Okay, here two demands are given. Okay, like this, and here only one particular demand is given. So when particular point is given to measure the price elasticity, then we will use the point elasticity method, and its main characteristic is that it is used for a very small change. Okay, and arc elasticity method is used for a finite range, means finite range means when there is a large amount of distance or large amount of changes between the 2 points, then between finite range or between 2 points. ठीक है, जब 2 points की और 2 finite range के बीच में मेजर करने को बोलेंगे तब हम यूज़ करेंगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड को. आई होप सो कि आप सभी को ये समझ में आया होगा.
एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि दो मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो मेथड्स हैं, एक पॉइंट है और एक आर्क है। पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज़ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज, और आर्क इलास्टिसिटी का यूज़ हम एक फाइनाइट रेंज की मेज़रमेंट को करने के लिए करते हैं। और एग्जांपल ये देखिए हमने कर्व ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये कर्व में डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ था, सपोज दैट दिस पॉइंट इज़ आर, ठीक है। जब ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को। लेकिन जब ये बोला जाएगा आप दो पॉइंट्स के बीच में या इतनी डिस्टेंस के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करिए, देन वी विल यूज़ द आर्क इलास्टिसिटी method, okay? And there are three types of, means totally two types of, we can measure arc elasticity। आर्क इलास्टिसिटी को हम टू मेथड्स की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, मीन्स टोटल मेथड्स हैं मेजरमेंट के दो, उसमें से आर्क इलास्टिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ योर एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों ही मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं आर्क इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसे ही हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। और एक मेथड और है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, दिस इज ओके, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। आर्क इलास्टिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परसेंट मीन्स इसको हम आर्क इलास्टिसिटी को हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, एक परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड से। ओके, लेट अस डिस्कस द मेथड्स ऑफ आर्क इलास्टिसिटी वन बाय वन। ओके फ्रेंड, नाउ यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। Yes friends, have a look on the percentage of proportionate method of arc elasticity। मीन्स टोटली हम क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थ्री मेथड से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर परसेंटेज, सेकेंड इज़ एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज़ पॉइंट और ज्योमेट्रिक मैथड। बोथ ऑफ देम आर दी पार्ट ऑफ द आर्क इलास्टिसिटी मैथड, ठीक है। ये दोनों आर्क इलास्टिसिटी मैथड के पार्ट्स हैं। ओके, सो पहले हम स्टडी करने वाले हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को। सो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को जो मेज़र करते हैं वो जो क्वांटिटी डिमांडेड रेशियो में, जो क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंट में चेंज होता है और जो प्राइस की परसेंटेज में चेंज होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। इसे हम देखिए, हमें डेफिनेशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। आपकी बुक में फ्रैंक में डेफिनेशन लिखा है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं इस तरीके से कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ, देखिए ये बीच में यहाँ साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों का क्या है, रेशियो है। इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की परसेंटेज में जो जो चेंजेस होते हैं उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपने इसे नोटेड डाउन कर लिया होगा। सो देखिए, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन, ये क्या है, परसेंटेज डेल्टा मीन्स सभी को पता है क्या होता है, चेंज इन,
डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज इन, ये आपकी बुक में बड़ा बड़ा लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स वर्बली ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सिम्बॉलिकली लिखा, आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और लॉन्ग लास्टिंग ये आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ये परसेंटेज का साइन लगा इसलिए से हम परसेंटेज बोलेंगे। डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये इन दोनों का क्या रेशियो होता है। ओके, मैंने आपको इसके पहले इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला बता दिया था और मैंने बोला था कि आपको मैं थ्योरम बताऊंगी, तो ये देखिए आज मैंने इसका पूरा यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन ये अपॉन फिर चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। यहाँ पर ईपी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ईपी मीन्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ईपी का क्या मतलब हो गया, आपने कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चलिए इसे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। और डेल्टा क्यू का क्या मतलब है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स जो क्वांटिटी डिमांडेड में आपके चेंजेस हुए हैं, चेंज इन क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, और ओनली क्यू मीन्स इनिशियल क्वांटिटी, ओनली क्यू मीन्स इनिशियल क्वांटिटी मीन्स शुरुआत की जो आपकी क्वांटिटी है वो, ठीक है। डेल्टा पी मीन्स क्या होता है, चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी मीन्स क्या होता है, चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में चेंजेस हुए हैं पहले, ठीक है। और पी मीन्स आपका क्या होता है, इनिशियल प्राइस मीन्स शुरुआत का प्राइस, इनिशियल प्राइस। ओके, दीज आर द टर्म्स, दीज आर द सिंबल्स एंड दीज आर योर एब्रिविएशन फॉर इट, और दीज आर दी प्रेजेंट मीन्स को हम क्या क्या पढ़ते हैं इन सिंबल्स को। ईपी को इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, सो द योर दिस इज ओके। अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, ये 100 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये बीच में यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड का साइन है ना, अपॉन, अपॉन मीन्स होता है डिवाइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड के साइन में डेल्टा पी अपॉन पी। ओके, फिर हम लोगों ने क्लास थर्ड स्पोर्ट में पढ़ा होगा रेसिप्रोकल वाला, कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तब हमारा जो जब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाता है, डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। जब हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज़ अगर नहीं पता हो तो आप इसे भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आफ्टर 8 ये देखिए इस तरीके से हमारा बन गया, हमने यहाँ रेसिप्रोकल यूज़ किया और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डेल्टा क्यू डेल्टा पी से होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू initial price upon initial quantity. Okay, it is written over here, the meaning of the symbols. Okay, if you have any query then please drop your query in the comment box. ठीक है, आप comment box में अपनी query को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हाँ friends, please don't forget to hit a like to this video, okay, because it gives me a smile and it motivates me to make a good video for you only. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हिट अ लाइक, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, this is your percentage or proportionate method. Okay, now note it down and now we will see the
numericals of the percentage or proportionate method. Okay friends, please note it down.